اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا. وہ زندگی اس کو موت نہیں آئے گی. ہاں تو وہ زندہ ہے، زندہ جاوید ہے. زندگی جس کو ملی ہوئی ہے وہ اسی کی دی ہوئی ہے، اور اس کی زندگی کسی کو دی ہوئی نہیں ہے. اس کی زندگی اپنی ہے، وہ اس کی زندگی خود اپنی زندگی ہے. اس کو جو زندگی ملی ہوئی ہے اس کو کسی کو دی ہوئی نہیں ہے، وہ خود ہے. وہ زندہ جاوید ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. قیوم ہے. قیوم مانے تھامنے والا ہے. کس کو؟ نظام کائنات کو چلا رہا ہے. جو بھی یہاں قائم ہے، جو بھی چیز یہاں قائم نظر آ رہی ہے اسی کے قائم رکھنے سے قائم ہے، لیکن اس کو کوئی چیز قائم رکھنے والی نہیں ہے. وہ قائم بالذات ہے، اس کی زندگی بھی اپنی ذاتی ہے اور اس کا قیام بھی اپنا ذاتی ہے. نہ قیام میں وہ کسی کا محتاج ہے، نہ بقا میں کسی کا محتاج ہے. زندہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ سب کے سب اس کے محتاج ہیں. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ اللہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. بولو کیسی ہستی ہے جس پر تمہارا ایمان ہے؟ نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اور کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات. زمین و آسمان پوری کائنات اس کی مملوک ہے. پوری کائنات پر تصرف اسی کو حاصل ہے. من ذا الذی یشفع. بتاؤ تم کون ہے جو اس کی جناب میں شفاعت کرے؟ تم شفاعتوں کی خوش فہمی مبتلا ہو. کون ہے جو اس کی جناب میں شفاعت کرے مگر اس کے اذن سے. یہ استثناء ذرا کیا ہے، الا باذنہ. دوسری جگہوں پر ہے کہا کہ وہ اجازت دے گا، جس کو اجازت دے گا وہی شفاعت کرے گا، اور جس کے سلسلے میں اجازت دے گا. دونوں ہیں. کون شفاعت کرے گا اور کس کے حق میں شفاعت کرے گا، دونوں کی وہی اجازت، دونوں کے مالک وہی ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے. لہذا جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو سفارش کرے اس کو بھی جانتا ہے. ایسا نہیں کہ سفارش کرے وہ گواہ بتائیں گے جو اللہ نہیں جانتا ہے. یہی نا یہاں جو دنیا میں جو سفارشیں ہوتی ہیں کسی کے یہاں، تو کس بنیاد پر؟ وہ جانتا نہیں ہے. بھائی بہت اچھے ہیں، ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، بہت غائب کرتے ہیں سفارش، لیکن وہاں یعلم ما بین ایدیہم. عموماً جہاں شفاعت کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے وہاں اس کے علم محیط کا ذکر کرتا ہے. علم محیط وہ ہماگیر علم رکھتا ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں کہ شفاعت کی تردید کرتا ہے نا وہی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کہتا ہے عموماً قرآن مجید. ولا یحیطون بشیء من علمہ. اور اس کے علم سے کوئی احاطہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. الا بما شاء. مگر اس کو اتنا ہی علم ہے جتنا وہ چاہتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. زمین اس کا اقتدار زمین آسمان کو وسیع ہے. ولا یؤودہ حفظہما. اور زمین آسمان کی حفاظت اس کو دشوار نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. اور علی، وہ بلند ہے، عظیم، اس کا اقتدار عظیم ہے. پھر اس کے بعد لا اکراہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی. حق واضح ہو گیا. باطل کیا ہے وہ بھی واضح ہے، اور حق کیا ہے وہ بھی واضح ہے. تو جو لوگ بھی طاغوت کا انکار کرتے ہیں، طاغوت کے معنی ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے میں جس کی بندگی کی جائے، ہر وہ چیز طاغوت ہے. جو اللہ کے مقابلے میں جس کی بندگی کی جائے، وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، وہ رسوم و روایات بھی ہو سکتی ہیں، وہ وقت کا اقتدار بھی ہو سکتا ہے، وہ عدالتیں بھی ہو. یہودی عدالتوں کو طاغوت کہا گیا ہے. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. جو لوگ بھی طاغوت کا انکار کرتے اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، گویا انکار پہلے طاغوت کا پھر بعد میں ایمان. یہ نہیں کہ طاغوت پہ وہ بھی با برہمن اللہ اللہ، با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام والی بات نہیں. ایک انکار کرنا پڑے گا. جی تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. تو اس نے کیا کیا؟ مضبوط رسی پکڑ لی.
उसका माने कुंडी, ये कड़ा, उसका माने उर्वा, उर्वा माने कड़ा, उसका माने मजबूत, उसका माने मजबूत, उर्वा माने कड़ा, कड़े कहना, हाँ मजबूत कड़ा उसने पकड़ लिया, टूटने वाली जंजीर पकड़ ली, उस जंजीर पकड़ ली उसने, मजबूत जंजीर टूटने वाली नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीम। अब उसके बाद जो है कुछ तमसीलें बयान हो रही हैं। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह मोमिन का वली है, उनको निकालता है किससे, तारीकों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है, और जो काफिर उनके औलिया तागूत हैं, ये उनको रोशनी से निकाल कर तारीकी जाम लाते हैं, ताकि अल्लाह अपने मुसलमानों को, अपने मोमिन बंदों को छोड़ता नहीं, तारीकों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है। और ये औलिया जो शैतान जो है क्या करते हैं, औलिया शैतान कि लोग रोशनी से निकाल कर तारीकी जाम ले आते हैं, यही लोग जहन्नम वाले हैं, हुम फिहा खालिदून। ये बात पढ़ने के बाद अब देखिए 10 मिनट बाकी है, इंशाअल्लाह तीन तफसीलें बयान हुई हैं, तीन तफसीलें बयान हुई हैं। एक हज़रत इब्राहिम और नमरूद की, और एक तमसील किसी ऐसे शख्स की है जो किसी बस्ती से उनका गुजर हुआ, उनका अल्लाह कैसे ज़िंदा करेगा। दूसरी तमसील हज़रत इब्राहिम की, दूसरी तमसील भी तीसरी तमसील हज़रत इब्राहिम की। ये किस चीज़ की तमसीलें हैं बता सकते हैं आप लोग? तीन तमसीलें बयान हो रही हैं आगे। ये तमसीलें किस चीज़ की हैं बता सकते हैं आप लोग? किस तरह जिंदा किया, मरने के बाद किस तरह जिंदा, बोलिए जो है, यकीन दिलाने। ठीक है, और बोलिए थोड़ा सा, मुर्दे को जिंदा किया। मुर्दों को जिंदा, और बोलिए, मैं बताऊंगा तो आप सांस बोल लीजिए। तीन तमसीलें बयान की गई। इसकी मिसाल है क्या, अल्लाह ताला किस तरह अपने मोमिन बंदों को तारीकी से निकालकर रोशनी की तरफ लाता है, और किस तरह शैतान के दोस्त उनको रोशनी से निकालकर तारीकी की तरफ ले जाते। अब पहली तमसील दी है कि देखो इब्राहिम है, मुहाजा किया, झगड़ा किया किससे, नमरूद से। क्या उस शख्स को देखा जिसने इब्राहिम से झगड़ा किया? किस सिलसिले में? अल्लाह की बादशाह के सिलसिले में झगड़ा किया। क्या कहता है वो? हज़रत इब्राहिम ने क्या कहा था? इज़ क़ाल इब्राहिम, जब इब्राहिम ने कहा मेरा रब मारता और जिलाता है, यही ने कहा रब्बिल लज़ी युहीन, उसने क्या कहा मैं भी मारता और जिलाता हूँ। तो इब्राहिम ने क्या कहा? मेरा रब सूरज को मशरिक़ से मग़रिब तक लाता है, तुदरा सा मग़रिब से मशरिक़ तक ले आया। फ़बुहितल लज़ी, हक्का बक्का रह गया। अब बताइए रोशनी चमकी कि नहीं? जब हज़रत इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब सूरज को मशरिक़ से मग़रिब तक लाता है, तुदरा मग़रिब से मशरिक़ तक, फ़बुहितल लज़ी कफ़र, यानी हक्का बक्का। कोई जवाब था उसके पास? कोई जवाब था? नहीं था। अब उसको मानना चाहिए था, नहीं बोलिए, मानना चाहिए, लेकिन नहीं, हक चमक गया जी। तो शैतान के औलिया क्या होते हैं? शैतान देखिए नूर चमका मगर तारीकी तरफ ले गया। वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता जालिम लोगों को, जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। अल्लाह तो उनको हिदायत देता जिनके अंदर ईमान है। ईमान है, ईमान जब जाहिर हो गया दलाइल के रोशनी में जी, तौहीद जब वाज़िह हो गई तुमको मानना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इनकार किया, अब भी नहीं तस्लीम कर रहा है। तो ये पहली तमसील देखिए किसकी, कि रोशनी जो है रोशनी से निकाल के किधर ले गया? रोशनी चमकी थी कि नहीं? चमक गई, उसको देख ले, हाँ उसको एतराफ़ हो गया, हाँ बात तो सही कह रहा, लेकिन फिर भी माना नहीं, तारीकी जाने। दूसरी मिसाल उस शख्स की है जिसको ईमान है, ऐसा मोमिन गैर मोमिन नहीं, ईमान है, यकीन नहीं आ रहा, बस यकीन नहीं आ रहा। गुजर हुआ बुजुर्ग का एक बस्ती से जी, गुजर हुआ, देखा कि खंडर, कह दिया अन्ना युही ला बाद मौत, किस तरह अल्लाह इनको जिंदा करेगा, कैसे जिंदा? ये देखिए ये इल्म है उनको, ऐसा नहीं, यकीन नहीं है। ईमान तो जाहिर है, वो मोमिन है ना। अब कल
वही खावित अला उरुशिया के माने देखिए, वही खावित अला उरुशिया तर्जमा कीजिए इसका। गिरी पड़ी थी ऊपर अपने छतों के, गिरी पड़ी थी अपनी छतों के। और देखिए, औंधी पड़ी हुई थी, हाँ, औंधी पड़ी हुई थी। औंधी पड़ी हुई थी, औंधी पड़ी हुई थी। चलिए, और जी छतों पर औंधी गिरी पड़ी थी। छतों पर औंधी, अब ये इनका क्या है भाई? मुंह के बल औंधी पड़ी। मुंह के बल गिरी पड़ी थी। और बोलिए, मुंह के बल। देखिए, उम्मत तर्जमा लोगों ने यही किया है, ये तर्जमा नहीं है मुनासिब, चाहे कोई भी तर्जमा करे। उसका मतलब वो वीरान बस्ती पड़ी हुई थी, अजाब आया था। साकिन जो उसमें जो मकीन थे, मकान था, मकीन नहीं थी। मकान था, खाविया माने वीरान, छतें थी, छत के बावजूद छतें थी, मकान था, मैं कोई रहने वाला नहीं था, सन्नाटा था। कहा ये सब मर चुके थे, कहा ये कैसे जिंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने क्या किया? फामात अल्लाह में था आमीन, 100 बरस तक उनको अल्लाह ताला ने मौत तारीख कर दी। ठीक है ना, मौत तारीख। अब यहाँ भी वो इख्तलाफ कि मौत एकदम से मुर्दा हो गए थे या बेहोशी तारीख कर दी, 100 बरस तक बेहोश रहे। फिर अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी बख्शी। पूछा कितने साल तक? जी कहा अरे यौमन अबाज, यो एक दिन या कुछ हिस्सा, यही ना। हाँ, कहा कि अरे 100 साल तक तुम रहे। फिर कहा हमको याद, फंजिल आता आमिक, अपने खाने को देखो, खाने को देखो, और पानी को देखो। खाना और पानी जल्दी बिगड़ते हैं ना, लेकिन लम ये तसन्नह बिगड़े हुए नहीं थे, उसी तरह तरोताज़ा, सड़ा नहीं था वो। और जो गधा ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह सकता है ना भाई, कहा देखो गधे की हड्डियाँ सिर्फ रह गई थी, एकदम वो सीधा हड्डियाँ थी। कहा आप देखो किस तरह हम इसको ज़िंदा कर रहे हैं। उन्होंने उसको कहा फन्ज़ु इलल-इज़ाम कैफ़ नुनशिज़ुहा, जी सुम्मा नक्सुहा लहमा। फिर देखा कि उन्होंने, अल्लाह ताला ने उसको उस पर चढ़ा दिया, गोश्त चढ़ा दिया, गोश्त का लिबास उसको पहना दिया। तो ये जब देखा उन्होंने, क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब क्या कहते हैं? अब हमें इल्म यकीन हमें हासिल होता है, इल्म यकीन होता है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ठीक है, ये किसकी मिसाल? ये मिसाल किसकी? अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति। थोड़ी तारीख सा पर्दा छा गया था, फौरन जब मिसाल आ गई तो अरे फौरन पुकार उठे, आलिमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तीसरी मिसाल हज़रत इब्राहीम की है। वो क्या है तीसरी मिसाल? हज़रत इब्राहीम पे ईमान भी है और उनको यकीन भी है, लेकिन इत्मीनान क़ल्ब, इत्मीनान क़ल्ब यकीन के ऊपर हिस्सा है। एक है ईमान, दूसरे यकीन, तीसरा इत्मीनान क़ल्ब। अभी तीसरी मिसाल जो दी जा रही है इत्मीनान क़ल्ब की है। हज़रत इब्राहीम कहते हैं कि अल्लाह तू कैसे मुर्दों को ज़िंदा करेगा? ये हुआ ना। तो क्या कहा तू औलम, क्या तुम्हारा ईमान नहीं? कहा क्यों नहीं, ईमान है, लियत्मइन्ना, इत्मीनान क़ल्ब चाहिए। कहा 4 परिंदों को लो और फिर उनको आप अपने से मानूस कर लो, फिर उनको 4 जो है पहाड़ों पर रख दो, फिर उनको पुकारो देखो तुम्हारे पास आते हैं कि नहीं। आ जाएंगे दौड़ते हुए। वालम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन, जान लो कि अल्लाह अज़ीज़ है, हकीम है। अब ये जो हज़रत इब्राहीम को सिलसिले में जो हुक्म हुआ 4 परिंदों को ले, देखिए इसकी 2 तावीलें हैं। एक तावील तो है कि 4 परिंदों को लो, उन्होंने लिया, फिर उनको ज़बह किया, ज़बह करने के बाद 4 पहाड़ों पर रखा, फिर बुलाया, सब आ गए। ठीक है ना, एक तावील ये बात वाज़ेह हो गई। उन्होंने कहा दूसरी तावील इमाम राज़ी ने पेश की है, जी अबू मुस्लिम असफ़हानी की है। उनकी तावील ये कि नहीं ये बात नहीं है, सिर्फ सवाल मुबहम है। कैफ़ तुहिल मौता, ये अल्लाह आज जो भाग रहे हैं, हम दावत देते चले जा रहे हैं, बिदक रहे हैं, कोई हमारे पैगाम पर लब्बैक नहीं कह रहा है। आखिर जब क़यामत होगी, इनको ज़िंदा करेगा जब, तो फिर तेरे पैगाम पर लब्बैक कहते हुए तुम्हारे दरबार कैसे हाजिर होंगे? ये सवाल है। तो उन्होंने, अल्लाह ने कहा कि अच्छा ये समझो 4 परिंदों लो, फसहुरुन इलैहि का माने क्या है? घुला मिला लो, कोई दाना दो, कोई पानी दो,
फिर जब तुमसे मानूस हो जाएंगे वो परिंदे, फिर तुम उन परिंदों को चारों को 4 सिमटों में डाल दो, 4 पाँव पर रख दो, फिर उनको बुलाओ तो देखो दौड़ते हुए चले आएंगे पर, क्योंकि उनके अंदर तुमने दाना खिलाया है, तूने पानी पिलाया था, तो रबूबियत को पहचान लिया उन्होंने कि ये हमारा रब है। ठीक उसी तरह जब क़यामत होगी, ये सारे हिजाबात खत्म हो जाएंगे जो आप आज भाग रहे हैं। उस दिन जब वो अल्लाह पुकारेगा, परवानों की तरह आ जाएंगे, मुहतईन कन्नहुम जरादुम मुंतशिर, गोया के परवाने हैं। आज तो इनको नहीं समझ में आ रहा है, क़यामत में खूब समझ में आएगा। दलील रबूबियत आज नहीं देख रहे हैं, ये रब है, कायनात के ही मालिक है, आज नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन उस दिन पहचान लेंगे अपने रब को, दौड़ते हुए आएंगे। सूरह है उसमें है, सूरह ताहा में, लाइवज यौम यदउदाए लाइवज ला, कोई कजी नहीं होगी, और उस दिन दाई के पुकार पर लब्बैक कहेंगे। ये 2 तावीलें हैं, एक तरफ तो उमूमन मुफस्सिरीन वही राय है, लेकिन वो उसे ज़बह किया, ज़बह करने के देखिए इसमें कोई नहीं इशारा किसके माने ज़बह करने के है ना। तो ये जो है ये किसी ज़बह करने मुफस्सिर न माने घुला लो मिला लो। और जुज़न 4 है ना, एक जुज़ हो गया कि नहीं, 4 जुज़ है ना, जुज़ 4 जुज़ है ना, अज्जा हो गए, तो कहा चारों को 4 सिमतों में डालो। तो फिर वो लेने की जरूरत नहीं पड़ी हज़रत इब्राहिम को, बस इस जब अल्लाह ने समझा आओ बस वो पा गए दलील रबू। हाँ, ये नहीं कि वो ले आए 4 परिंदे, फिर उन्होंने हिलाया, फिर नहीं, ये जब अल्लाह ने समझाया उनको फौरन दलील रबूबियत पा गए। हाँ बस उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि लाए, समझ गए शुजाउद्दीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप समझ गए तो समझ में गया। ये किसकी राय है जानते हैं आप? ये राय जो है अबू मुस्लिम असफ़हानी की है, इमाम राज़ी ने उसकी खूब तारीफ़ की है, और फिर उर्दू ज़बान के बाद मुफस्सिरीन ने इसको लिया है। सबसे पहले कौन लेने वाले हैं जानते हैं आप? उर्दू ज़ुबान की तफसीरों में मालूम है कौन है? ना, अब्दुल कलाम। मौलाना आज़ाद, बिल्कुल सही फरमाया, मौलाना आज़ाद ने ये लिया है, मौलाना आज़ाद ने ये लिया है। और फिर मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही इसको पेश करते हैं, मौलाना जलील अहसन नदवी ने इसी को पेश किया। हमारे मौलाना मौदूदी साहब, मौलाना अमीन अहसन इस्लाही ने आम लोगों की जो तफसीर वही तफसीर की है, बल्कि मौलाना अमीन अहसन साहब इस्लाही के बहुत मजाक उड़ाया है ना, लेकिन बरकैफ ये हमने पेश किया। और अरबी ज़ुबान के मुफस्सिरीन जैसा कि हमने कहा, कदीम मुफस्सिर में अबू मुस्लिम असफ़हानी है, इमाम राज़ी ने उसको पेश किया है। और जदीद मुफस्सिरीन में कौन है जानते हैं आप? अल्लामा रशीद रज़ा मिस्री हैं, उन्होंने इसी राय को पेश किया है। अब इन्हीं बातों पर आज कल मैं दर्स ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह कल जो होगा इस सूरह का ख़ात्मा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़।